assistant professors, the nation builders, right? आई होप कि अब तक हम लोगों ने जो भी सीखा है, जो भी डिस्कस किया है, आप लोग को समझ में आ गया है। एज द नेम इंडिकेट्स, आज हम लोग क्या देखेंगे? रीसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जरूरी है ना? जो पुराने जमाने में अकाउंट्स होता था वो तो होता ही था, बराबर होता है भी, बट उसमें कुछ ना कुछ एडिशन जरूरी है। वाई? बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। See, the international environment or the national environment, whatever you say, it's continuously changing and we are already aware that it's dynamic in nature, right? So that dynamism should be in your work also. तो अकाउंट्स में भी चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। कैसे कैसे हुए तो हम लोग आज वही देखने वाले हैं। विद इन फ्यू मिनट्स ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्यों? आपको सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर आ गए ऑब्जेक्टिव्स तो यू नीड टू नो व्हाट वर द कॉजेज, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड व्हाई देयर वाज अ नीड of change in accounting, which are the bodies governing the accounts change, which are the bodies which are making something compulsory to display in your accounts and why it is compulsory. So let us see. Changing accounting environment, एक reason for change, yes, globalization of business, yes, technological advancement, international reporting requirement, IFRS हमने देखा है already, increasing stakeholders expectation, yes, stakeholders we have already seen and they have your expectations with various levels. Corporate governance reform, क्यों है corporate governance? समाज की सेवा करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। केबीसी में आपने देखा होगा कि सो एंड सो बैंक बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सो एंड सो बैंक गांव आपको डोनेट करके ले रहे हैं, गांव को डोनेट में करके उधर वो सोलर पैनल बिठा रहे हैं, उधर इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं, उधर बच्चों का हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर केयर कर रहे हैं, राइट? दिस आर ESGs. Okay, digital transformation, this is one of the basic thing, because digital transformation have also invited various types of fraud. So should your accounting change as per the precautionary measure of the frauds? Surely yes. Right? Emerging areas, ESG reporting. What is ESG? Environment, sustainability and governance. Sustainability accounting, integrated reporting, forensic accounting as the name indicates, fraud पकड़ने के लिए है। Artificial intelligence, yes, अभी का दौर AI का है और AI में लाख का खाक और खाक का लाख करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। You must have seen the cases of digital arrest and all those things, right? Blockchain accounting, data analytics, digital auditing. So these are the terms which you have to remember in which areas there are changes. Okay? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA, नाम से ही पता चल रहा है कि आप जो भी अकाउंट्स कर रहे हो उसको रिपोर्ट करना है, तो कौन सी अथॉरिटी है? NFRA, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एस्टेब्लिश्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके? इंप्रूव ऑडिट क्वालिटी। अब ये एथिक्स के मैटर है, ऑडिटर कितना एथिकल बिहेवियर रखता है उसके ऊपर क्वालिटी इंप्रूव या डिग्रेड होगी। बनने के लिए लॉस तो बहुत बन जाते हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द एथिक्स, द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, राइट? बस एज ए टीचर इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर टीचर बनोगे तो मराठी में एक कहावत है कि माझं ते सोनू लिया दुसऱ्याचं ते कार्ट, ये एटीट्यूड रख के नहीं चलेगा। हमें अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट भी रहना है और ज़रूरत पड़ने के माँ बाप की तरह उनको संभालना भी है, राइट? Protect public interest, monitoring accounting standards and regulate auditors. As it is we have seen in environment of businesses कि stakeholders बहुत सारे, तो उनके प्रति अपनी जो responsibility है, and we have also seen that accounts is the language of the business, right? So connecting all this functions, recommend accounting standards, recommend auditing standards, investigate professional misconduct, enforce compliances, rules and regulations लागू करना। Powers of NFRA क्या करेगा? आपको हटा भी सकता है, आपको अपॉइंट भी कर सकता है। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ऑडिटर्स, ओके, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल, डिपार्टमेंट मतलब लात, ओके। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग फॉर द एनवायरमेंट। अगर आप अपने बिजनेस में से एनवायरमेंट के लिए कुछ स्पेंड करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता है, ओके। अकाउंटिंग फॉर एनवायरमेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरमेंटल कॉस्ट मेजर्स। मैं हमेशा मेरे कॉलेज में बच्चों को कहता हूँ कि अगर पॉल्यूशन बढ़ गया, देखो आज जून की 18 तारीख हो गई लेकिन बारिश नहीं है, 2026 18 जून, नो रेन। रीज़न? आप दे बोलते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं बच्चों को कॉलेज में बोलता हूँ कि इसके मेन जिम्मेदार कौन है? हम यानी कॉमर्स वाले,
धंधा अपन करते हैं, लाइसेंस अपन लेते हैं अंडर द टेबल, करप्शन के लिए अपन ये करते हैं, पोल्यूशन अपन ही बढ़ाते हैं, जो भी बिजनेस कर रहा है वही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, क्यों? बिजनेसमैन को जगह देने के लिए, राइट? सो इट्स कॉमर्स और कमर्शियल एटीट्यूड which is spoiling the environment a lot, correct? So sustainable development, better resource utilization. कंपोनेंट्स कौन है इसके? पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट जस्ट बताया अभी, वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, एनवायरमेंटल लायबिलिटीज, एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट। बेनिफिट क्या होगा? बेटर एनवायरमेंट डिसीजंस होने चाहिए, सॉरी होगा नहीं बोलूंगा मैं, एनहांस कॉर्पोरेट इमेज, ये हो जाए। अगर आप एनवायरमेंट के लिए खर्चा करोगे तो आपका कॉर्पोरेट इमेज बढ़ने वाला है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इट्स द रूल रिक्वायर्ड, एंड बहुत सारे लोग तो करना है इसके लिए करते हैं। आई हैव सीन पीपल जो इतना बता देते हैं डोनेशन कि डोनेटेड फॉर एनवायरमेंटल कॉज 1 करोड़, लेकिन उनको बोला आप हमें 90 लाख कैश में दो, 10 करोड़ आपके लिए रखो, 10 लाख आपके लिए रखो। खर्चा आपने 1 करोड़ बता दिया और वो ट्रस्ट वाले भी झोलर कि 90 लाख इनको कैश में दे दिया। Okay, this thing should not happen. Sustainability accounting. Sustainability accounting is the long-term accounting for overall development and benefit balance. Measurement of environment, social and economic performance. Objective, long-term value creation. Sustainable development. बड़ा development और sustainable development फर्क है। development क्या है? ऐसे अंधाधुन, और sustainable balanced प्लान करके सबका भला हो वाला एटीट्यूड रख के जो डेवलपमेंट है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, स्टेकहोल्डर्स रिपोर्टिंग। डायमेंशंस, इकोनॉमिक में प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, सोशल में एम्प्लॉय वेलफेयर करना है, और समाज का भी ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट। ईएसजी रिपोर्टिंग मैंने पहले ही बताया, एनवायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल एंड गवर्नेंस। ओके, तो आपने एनवायरमेंट के लिए खर्चा कितना किया, सोसाइटी के लिए खर्चा कितना, और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का सिस्टम अच्छे से चलने के लिए कितना खर्चा किया, उसका रिपोर्टिंग अलग से करना पड़ता है। ओके, तो एनवायरमेंट में कौन से फैक्टर है? कार्बन एमिशन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूज। इस पे आपका कितना खर्चा है वो रिपोर्ट करके देना है। सोशल फैक्टर्स में एम्प्लॉय के लिए कितना किया, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए कितना किया, ह्यूमन राइट्स के लिए कितना खर्चा किया, और कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए कितना खर्चा किया। गवर्नेंस में board structure, ethical practices, transparency and risk management. Importance of ESG, yes, investors confidence, जिसने पैसे लगाए उनको भी कॉन्फिडेंस होगा, नहीं यार अपनी कंपनी इन सब चीजों के लिए भी खर्चा कर रही है, राइट? सस्टेनेबल ग्रोथ, बेटर गवर्नेंस, एनहांस रेपुटेशन। ESG रिपोर्टिंग इन इंडिया, ये BRSR यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इसके अंतर्गत होता है। इंट्रोड्यूस बाय सेबी, ओके, इन कोऑर्डिनेशन विद RBI। एप्लीकेबिलिटी, टॉप लिस्टेड कंपनीज को ये कंपलसरी है कि आपको BRSR करना है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, मिलीजुली सब कुछ इसमें एक साथ हो जाता है। कंबाइंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ओके, कैपिटल अंडर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, कौन सी चीजें आपको रिपोर्ट करनी है इसमें इंटीग्रेटेड में? तो फाइनेंशियल कैपिटल कितना लगा वो, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल यानी कि आपने असेट्स कितने बनाए वो, इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपका पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, उसके पीछे आपने कितना नॉलेज एंड इनोवेशन में डाला है वो, ह्यूमन कैपिटल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग कितनी दी, उनकी स्किल एनहांसमेंट कितनी की वो, सोशल कैपिटल समाज सेवा के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, नेचुरल कैपिटल नेम इंडिकेट्स एनवायरमेंट में आपने कितना खर्चा किया। एडवांटेज क्या है कि सब कुछ एक साथ रिपोर्ट कर दिया तो बेटर ट्रांसपेरेंसी आई, लॉन्ग टर्म फोकस आया, इंप्रूव्ड स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन आया। डन। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फ्रॉड, झोल झपाटे ये सब पकड़ने के लिए आपने क्या क्या किया है? एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, फ्रॉड डिटेक्शन, फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड लिटिगेशन सपोर्ट। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट फ्रॉड, इंश्योरेंस क्लेम, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। इंश्योरेंस क्लेम क्या है? बहुत सारे लोग जिंदा होते लेकिन ये बता देते कि मेरा बाप मर गया और उनके नाम पे पैसा ले लेते हैं, खुद भी मर गए ऐसा बता देते और पैसा लेने लगते, वो पकड़ना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए तो मैं कुछ ना बोलूँ वही अच्छा है। टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। स्किल्स रिक्वायर्ड,
अकाउंटिंग नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, पर कहाँ पे गलती है वो पता चलना चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं डाउट लेकर, सर ये ना अमाउंट, ये टैली नहीं हुआ, कितना अमाउंट आया, इतना, कितना डिफरेंस है, इतना, देख तूने इतने का कुछ गड़बड़ किया है क्या, हाँ सर ये अमाउंट रह गया था डेबिट में लिखने का। दैट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज मस्ट टू कैच द झोल झपाटा। ओके, इन्वेस्टिगेशन स्किल थोड़ा सा होना चाहिए, लीगल अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो, एंड डेटा एनालिसिस, फॉरेंसिक ऑडिट, यस, तो जो भी है आपको ऑडिट करवाना है। यानी क्या करेंगे आप, एविडेंस कलेक्ट करोगे, फ्रॉड डिटेक्ट करोगे और लीगल प्रोसीडिंग सपोर्ट रखोगे। यस, डिजिटल अकाउंटिंग एज द नेम इंडिकेट्स, टेक्नोलॉजिकली जो भी आप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो अकाउंटिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। तो ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग है वहाँ पे, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन है। एडवांटेज क्या है इसका, तो स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिड्यूस पेपर वर्क है, बेटर एसेसिबिलिटी है। आपको क्वेश्चन आ सकता है द एडवांटेज ऑफ डिजिटल अकाउंटिंग इज, ओके, टाइम कंज्यूमिंग, एक्यूरेसी, रिड्यूस्ड पेपर वर्क, ओनली वन, ओनली टू, ओनली 2 3 4, ऑल द अबव। तो ऑप्शन शुड बी सी, ओनली 2 3 4, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, स्पीड है एडवांटेज, राइट। पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी पता है, टेली प्राइम है, सैप है, ओरेकल ईआरपी है, क्विक बुक्स है एंड जोहो बुक्स है, राइट। कुछ एप्स भी आ गए हैं। डिजिटल ऑडिटिंग एज द नेम इंडिकेट्स, आप ऑडिट करोगे किसके, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उसका पूरा ऑडिट करना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट प्रोसीजर्स, बराबर। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटिन्यूस ऑडिटिंग। एडवांटेज, फास्टर ऑडिट, बेटर कवरेज, एनहांस एक्यूरेसी एंड रिड्यूस मैनुअल एफर्ट्स। एआई की मदद से आप कर रहे हो तो एआई इन अकाउंटेंसी, यस, एथिकल होना बहुत 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 जरूरी है। वे यूज ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर अकाउंटिंग, इनवॉइस प्रोसेसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, अंदाजा लगाना, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ओके, बेनिफिट्स क्या है, ऑटोमेशन है, एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है, कॉस्ट रिडक्शन है। लिमिटेशंस क्या होने वाले हैं इसके, हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, करेक्ट। डेटा एनालिटिक्स इन ऑडिटिंग, यस, बहुत अकाउंट्स में हमारा डेटा होता है तो उसका ऑडिट करना और उसको एनालाइज करना दोनों भी मुश्किल है, तो ये चीज़ इसी के साथ डील करेगी। एनालिसिस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर ऑडिट पर्पस, क्या है ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड ट्रेंड एनालिसिस, करेक्ट। टेक्निक क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, मतलब कुछ अच्छा ये कम है मतलब ये है रीजन, ओके। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, अच्छा इतना इतना परचेस है यानी इतना होना चाहिए था, इतना हुआ, लफड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिटेल में आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, आप दे देते हो। बेनिफिट्स क्या हो रहा है, ऑडिट की क्वालिटी सुधर रही है, डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा हो रहा है, रिस्क असेसमेंट अच्छा हो रहा है ना। ब्लॉकचेन अकाउंटिंग, तो आप वेबसाइट्स वगैरह ये सब करते हो, बराबर है, तो वो अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, फीचर्स डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। एडवांटेज क्या है, रिड्यूस फ्रॉड, बराबर, अब ये ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ, बराबर, रियल टाइम वेरिफिकेशन, बेटर ऑडिट ट्रायल। चैलेंजेस क्या है भैया, रेगुलेटरी इशू है, बराबर, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, सर्वर डाउन हो गया या आपकी प्लेटफॉर्म ही क्रैश हो गए तो लोचा। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, ऑब्वियसली, करेक्ट। XBRL रिपोर्टिंग, अभी मुझे भी उतना इसके साथ मैं फ्रैंक नहीं हूँ, लेकिन पढ़ के पता चल गया, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ओके। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एज वी ऑल नो कि मैं टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड नहीं हूँ, ओके। स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें ज़्यादा आपको ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, XBRL रिपोर्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय XBRL, तो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ओके, क्योंकि एडवांटेज वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले हैं, तो इसको ज़रा बाय हार्ट कर लेना, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, XBRL, डन। क्लाउड अकाउंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग देखते हैं ना, सीधा आपका उधर ही चला जा रहा है सब कुछ। अकाउंटिंग यूज्ड यूजिंग क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, बराबर, तो आपके पीसी में अकाउंट्स का काम मैं कर रहा हूँ, मेरे पीसी में अकाउंट्स का काम आप कर रहे हो, इतना तक पहुंच गया है सब कुछ, बराबर। ऑनलाइन एक्सेस, रियल टाइम अपडेट्स, ऑटोमेटिक बैकअप्स। एडवांटेज क्या है, लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, स्केलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी। रिस्क वही अपना झोल झपाटा, हैक वाला एंड ऑल दोस थिंग्स।
साइबर सिक्योरिटी इन अकाउंटेंसी, यस, बहुत रिस्की है ऑनलाइन अकाउंटिंग, बराबर है। तो प्रोटेक्शन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, थ्रेट कौन से है, हैकिंग का है, मालवेयर है, डेटा की चोरी हो सकती है, रैंसमवेयर हो सकता है, बराबर। सेफगार्ड कैसे करोगे आप, इंक्रिप्टेड आपको आ रहा है ना, फिंगरप्रिंट ही है, पासवर्ड ही डालना है, ओटीपी डालने के बाद ही पेमेंट हो रही है, ये सब सिक्योरिटी के लिए है, बराबर। इंक्रिप्शन है, फायरवॉल्स है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है एंड रेगुलर बैकअप्स है, राइट। Continuous auditing is must because it should be on and on. Real time auditing, automated control and continuous monitoring. करेक्ट। एडवांटेज क्या है, फ्रॉड फटाफट पता चल गया, आपकी ट्रांसपेरेंसी हो गई, ट्रू एंड फेयर वे मिल गई, टाइमली रिपोर्टिंग हो गया, इंप्रूव्ड गवर्नेंस हो गया। यस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डिस्क्लोजर ट्रेंड्स, तो इमर्जिंग ट्रेंड्स में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, ईएसजी डिस्क्लोजर आपको करना ही है कंपल्सरीली हर बड़ी कंपनी को, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हमने देखा, रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्टिंग देख लिया, स्टेक होल्डर्स अकाउंटेंसी। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो इन्वेस्टर्स में आप में इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो गया एंड इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। ये सिर्फ पॉइंट्स याद रखोगे तो आप अपना इजीली ऑप्शन सिलेक्ट कर पाओगे। ओके, फीचर्स आपके किस ऊपर ध्यान देने हैं आपको, तो ये इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो क्योंकि ये हमेशा पूछा गया है। ओके, ऑनलाइन 1 लाइन फैक्ट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, इनको पढ़ लो, दिमाग में फिट आ गए। यस, आई होप आई एम क्लियर, थैंक यू। अच्छे से पढ़ो, एग्जाम नज़दीक आ रही है, नेट की भी सेट की भी। आई वुड रियली होप ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी फ्यूचर नेशन बिल्डर ऑफ माई कंट्री। ओके, याद रखना टीचिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यस, ये एथिकल पार्ट में थोड़ा थोड़ा ऐसे ही देते जाऊंगा क्योंकि आपको पेपर 1 में ही आने वाला है। यस, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है कि इतना इतना पैसा लो मेरे बच्चे को पास कर दो, आप करोगे या नहीं करोगे? प्राइवेट पे जॉब कर रहे हो तो अ रियल टीचर विल नॉट डू। क्यों? इनर कॉन्शियस आपका जिंदा होना चाहिए एज ए टीचर। यस, सेकेंडली, अगर आप पैसा लेके फेलियर बच्चे को पास कर रहे हो तो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके साथ अन्याय नहीं है क्या? एज ए टीचर आप क्या मैसेज दोगे समाज में फिर, राइट? तो अंदर से जाग कर फिर आपको अपना काम करना है। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट। ओके, माय फ्यूचर